इंजन चल रहा है ना, तो क्रूज चले ही चले जाते हैं, बाकी प्लान वही था। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा 100%। बहुत जल्दी गुजरात में भी शिपाही है, रोड अपना चालू हो जाएगा, तो दो तीन लोकेशन गुजरात की रहने वाली है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम, आप सबका स्वागत है यहाँ सेंट्रल ब्रोकिंग और वाटरवेज लीजर की तरफ से। वार्म वेलकम। We are starting the press conference. Yesterday we did the launch in Bombay and we got a very enthusiastic response. मैं डायस पे इंट्रोड्यूस करता हूँ मिस्टर Jürgen Velong. He is the Chief Executive Officer, Chairman of the Board and Executive Director. Veteran of the industry, and he has very strong experience across hospitality, tourism, shipping, all 40 years plus experience, and he's more Indian than... Don't make me that old, no. 39 years. 39, sorry. And he's more Indian than the rest of us. He knows Hindi, he speaks good Hindi, he understands Hindi. So we'll have to be careful. But anyway, उनके बगल में निशिकांत उपाध्याय, he is Chief Financial Officer of the company, and he is also a veteran in this industry and across industries. He worked with listed companies, unlisted companies. Central Broking से मैं और तरु, we are the VRLs to the issue. So we are very excited, and we are from the entertainment industry, so we're going to have an entertaining session. Waterways के बारे में दो तीन चीज़ बता देता हूँ. We are one of India's leading domestic ocean cruise operators. We are a good mix of luxury, hospitality, entertainment, and culturally related experiences. And we enable guests to discover India's coastline and neighboring destinations बहुत ही यूनिक और मेमोरेबल तरीके से. हमारे साथ 730,000 गेस्ट सेल हुए हैं सिंस इंसेप्शन हमारे फ्लैगशिप वेसल में MV Empress, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स में बॉम्बे, गोवा, कोची, चेन्नई, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी, these are our destinations in India. और इंटरनेशनल रूट्स में श्रीलंका, थाईलैंड, Singapore, Malaysia. These are our international destinations, and we launched our IPO. It's a 585 crore IPO, all fresh issue of shares. The proceeds will be used for expansion, basically for lease rentals for 2 new ships. Price band is 769 to 808. Anchor book opens on Monday, is June 22nd. And issue will open on Tuesday, which is June 23rd, and close on June 25th. Listing, we are targeting to finish it by end of month, or 1st July. I'll request Jürgen to start. He gives insights on the company, on his journey, and the opportunities which lie ahead. Thank you. All right. Namaste, namaskar. Oh my God, you guys are very quiet. Suprabhat. Still sleepy? Nothing like that. Okay. All right. Whoever has cruised before? Anybody was on a cruise ship before? Yeah. Oh, nice. Good ship? Nice. Food was good? Can't be as good as on our ship. We have 100% Gujarati food, lot of ghee, good dal makhani. Very good. Well, welcome to our press meet. I'm very happy to be back in Gujarat. It's one of my favorite places. I love the food in Gujarat. Very good. We wish your river would be a little bit bigger, so I can bring the ship in on the back, but it's too small for our ship. So the closest place we come is Diu and Porbandar. However, we started working with the big shipyard in Gujarat. So we might gonna bring our ship here to Gujarat in the future for refurbishment and dry docking.
very excited to be here. So, let me tell you a little bit about cruising and Cordelia Cruises and the opportunity. And I hope you'll understand me, because if you prefer, I will ask Nishikant to say it in Hindi. Do you prefer to say it in Hindi? Yeah? Yeah. Okay. So Nishikant, get ready. Okay, cruise internationally is not such a big market or such a big sector as you think. It's actually a small niche. 40 million people go cruising every year globally on all the ships in the world. India today has approximately 13% population already, which easily can afford to go cruising. Yeah, I heard it. So in Korea, I was talking about the niche, small 40 Yeah. and English. So कैसा रहता है कि जो वर्ल्ड में जितने भी शिप हैं और जितने लोग क्रूजिंग करते हैं, करीब 4 करोड़ लोग वर्ल्ड में हर साल क्रूज करते हैं, और जितने 550 जो शिप हैं वर्ल्ड के, वो सारे 100 से ऊपर परसेंट 110% तक फुल हो जाते हैं। Are you spoken about India? So 11, 12, 13%, you can imagine, that reflects approximately 200 million people. That's 5 times what we need to fill all the ships globally. Approximately 8% people have passports. That's another 100 million. What is so unique what we are doing when you come on a cruise on Cordelia is visa-free, passport-free. Only what you need is a driver's license or other card, and you have an international cruise experience. So the difference between us and a cruise in Singapore or anywhere else is the product. The ship is the same, it's an international cruise ship. It's very big, but the reason what we are doing is the proper Indian way. We have the best Jain food, best veg food, best non-veg, best dal makhani, best masala chicken, best Bollywood show. So we are a real Indian product. क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ, उन्होंने बोला कि भाई अगर इंडिया में 8% लोग पासपोर्ट होल्ड करते हैं, और अगर अफोर्ड करने की बात करते हैं उसको, तो करीब 12 से 13% लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इस नंबर को इंडिया की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करें तो करीब 14 करोड़ से 20 करोड़ के बीच का नंबर बनता है। तो अगर मैं बोलते हैं कि अगर ग्लोबली 4 करोड़ लोग अगर कुछ करके पूरे वेसल्स फुल कर सकते हैं, तो भारत अकेला विश्व में जो ट्रैवल करते हैं उसका 5 गुना की सप्लाई कर सकता है। उस टर्म्स में अपॉर्चुनिटी का कोई चैलेंज नहीं है। सप्लाई और डिमांड का अगर चैलेंज की अगर बात कर रहे हैं तो कोई चैलेंज नहीं है। दूसरा मैंने बोला कि हमारा जो शिप है उसमें आपको सारा वेज फूड, जैन फूड, गुजराती फूड, हमारा पूरा ऑथेंटिक रहता है। हमारे आईटीसी में इवेंट कर रहे हैं, आईटीसी फेमस है दाल मखनी की, हमारी दाल मखनी शिप की काफ़ी फेमस है। हमारा जो फूड होता है पूरा, हमारे महाराज जो होते हैं गुजराती, और तो सारे महाराज हमारे उस तरीके से गुजराती फूड वाला सारी बोला नहीं चले जाएंगे तो चलने का फूड होगा। तो वी एंश्योर है कि जितने भी हमारे इंडियन कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट को हम पीट आउट करें। शोज हमारे बॉलीवुड शोज होते हैं, जैसे कि अगर आपने इंडियन आइडल देखा है, आपने सारेगामा चैनल देखा है, या आपने कोई रियल टाइम शोज देखे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो शोज होते हैं बॉलीवुड का राइट होता है, उसके बाद बल्ले बल्ले वाले में शो होता है। तो ये ब्रीफ हमारा जो शिप है उसका बिल्कुल कंप्लीट इंडियन एक्सपीरियंस है। आप विदेश में जाएंगे तो इंडिया में वही शिप, वही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एग्जैक्टली इंडिया के टेस्ट में देगा। So to give you a little bit a glance what it looks like to be on our ship and what it feels like to be on your own cruise line. Because remember, this is an Indian cruise line for Indians in India. So we are doing it all properly the Indian way. Now the most important thing is there's 2 different types of cruising. One is called international cruising, but this is a business model, not because the ship is going international. And there's domestic cruising,
We are the only domestic cruise line in the world. तो अभी आप जो क्रूजिंग का एक्सपीरियंस होता है, देयर इज अ कंसेप्ट इंटरनेशनल क्रूजिंग और डोमेस्टिक क्रूजिंग। डोमेस्टिक क्रूजिंग का ये फंडा होता है कि आप जब इंडिया में आप जब रहते हो, इंडिया का 11,500 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, विदेश की वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो आप जब एक कंट्री के पोर्ट को छोड़ के दूसरे पोर्ट पे जाते हो, तो आप उस कंट्री में अपना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना लेते हो। उस कंट्री के आप एक तरीके से निवासी हो जाते हो, आप उस कंट्री के कायदे कानून को मानना होता है। तो वो एक डोमेस्टिक क्रूजिंग डेफिनेशन बन जाता है। विदेश की शिप और हमारे शिप में कोई फर्क नहीं है। एक्सपीरियंस हमारा होगा वो इंटरनेशनल है, लेकिन एक्सपीरियंस हमारा इंडियन तरीके से है। सारा वहाँ पे लोग इंडियन रहते हैं, आपका खाना इंडियन होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हम ही एक कंपनी है जो डोमेस्टिक क्रूजिंग करती है। इंटरनेशनल क्रूजिंग हम करते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग सिर्फ इंटरनेशनल क्रूजिंग करते हैं। वो अपना अगर देश छोड़ेंगे तो अगली सीलिंग पे अगला पोर्ट को दूसरी कंट्री में जाएंगे। वहाँ रीजन ये आता है सिर्फ टैक्सेशन स्ट्रक्चर का, क्योंकि एक तरीके से वो विदेशी रहते हैं, सही टैक्स भी भरते हैं। हम इंडियन कंपनी है, हम इंडिया के सही नियम कायदे फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। इन सब प्रावधानों के बावजूद भी हमारा नंबर और प्रॉफिट, उनके नंबर और प्रॉफिट सब सेम है। कैसे हम ओवरऑल आपको समझाएंगे कि जर्नी में हम कैसे टर्नओवर से प्रॉफिट पे पहुंचते हैं, वो कैसे टर्नओवर से प्रॉफिट से पहुंचते हैं, हम कैसे सेम आपको एक्सप्लेन करें। This is also one of the reasons why very little international cruise ships come here, because they're in tax havens, and the moment they would come here to India and going to two Indian ports, they have to pay taxes globally, because they're registered in the stock market in America. So one, we have a beautiful coastline, as Nishikant told you. We have very beautiful places. We work very hard on developing the Lakshadweep Islands. And you might have heard, together with your Honorable Prime Minister, there's the Cruise Bharat mission, which is the development of all Indian ports. And that's the reason why we bring one ship, and then another ship, and another ship, so we can grow together with infrastructure and the development of the Cruise Bharat mission. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार है, उन्होंने क्रूज भारत मिशन और G20 समिट में ये सब जो प्रयास चलाए हैं, वो जो अपना जो समुद्री मार्ग के थ्रू और जो रिवर के थ्रू वो फोकस कर रहे हैं कि पानी के तहत जो टूरिज्म है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और उसके तहत उनका अलग अलग पोर्ट बनने आए हैं। कुछ 28 तक कुछ पोर्ट बनेंगे, 30 तक कुछ बनेंगे, 32 तक कुछ पोर्ट बनेंगे। और यही कारण है कि हम पहले एक वैसे हमने कोविड के दौरान 2020 में कंपनी फॉर्म करी थी, और कोविड में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि हमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है। और सडनली चैलेंजिंग था। 16 सितंबर 2021 को हमारी फर्स्ट सेलिंग थी, और उसके बाद हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। हमने पहला वैसा खरीदा, बाद में दो वैसा और खरीदेंगे, और हमको प्रॉफिट जब दिख रहा था तो हमने उस हिसाब से स्ट्रक्चरिंग करके। बट आप एक्सपांशन कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि क्या 5 गुना पॉपुलेशन को कैटर कर सकता है, बट उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। डिमांड और सप्लाई है, बट उसको कैटर करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है वैसे वैसे क्रूज इंडस्ट्री डेवलप होगी, आगे होगी। So what else is unique here in India? It's actually unique not only in India, this what we're doing here is unique worldwide. People go cruising internationally. The average age of guests is 56 years plus, and the cruise length is 7 days, 14 days, 3 weeks, 4 weeks. Here in India, the average age is 33, 34. And people want to go cruising every weekend, a lot of corporates, a lot of weddings, lots of mice, and more 3 days, 4 days, 5 days. So there's a huge difference. And the other difference is internationally, passenger buying cruise tickets with travel agents, tour operator, wholesalers, almost 80%. And the cruise industry has to pay 20-25% commission. And here in India, most of the people book directly with us. And we only pay little less than 2% commission because of it. Now remember what Nishikant said, tax-free, international is tax-free. We pay taxes, but we pay very little commission and they pay a lot. Now we are in the same business model.
क्रूजिंग ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए कुछ नया है। कभी पुराने 30, 35, 40 साल से लोग बाहर जाते थे क्रूज करने के लिए। अभी भी आप तो हमारे यहाँ से 3 टन जो नए हमें मिलता है, और वो बता पाएंगे कि एक्सपीरियंस हमारा जो शिप पे लिखा है वो रियल एक्सपीरियंस था। तो जो विदेश में जब क्रूजिंग होती है वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं एजेंट के थ्रू अपना बुकिंग करना, और भारतीय हम लोगों की अप्रोच ये रहती है कि हम डायरेक्ट वन टू वन बात करें हमारा जिससे भी हम जाना चाहते हैं, और सब उसको हमारा पूरा क्या सब सर्विस मिलेगी, क्या प्रोडक्ट रहेगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा। हमारा 65 से 70% हमारा इन हाउस से होता है, और 30 से 35% हमारा हमारे एजेंट्स के थ्रू होता है। अब विदेश में वो क्या करते हैं, 25% कमीशन पे करते हैं एजेंट्स को। हमारा इसकी वजह से 2% कमीशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगेगा GST लगता है। वो लोग टैक्स की मॉडल में है, जैसे मैं बताया वो इंटरनेशनल से नहीं करते हैं, हमारा सारा डोमेस्टिक से नहीं होता है। तो अगर ऐसे बात करेंगे, वो हम 18% GST चार्ज करते हैं, 25% कमीशन देते हैं, तो टेक्निकली उनकी हमारी प्राइसिंग सेम हो जाती है। फिर उसके साथ आगे नीचे जाएंगे तो उनका फूड महंगा होता है, हमारा खाना सस्ता होता है। हम लोगों की ऑन बोर्ड रेवेन्यू कम होती है, उनकी ऑन बोर्ड रेवेन्यू उनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग ड्रिंक्स और ये जो ऑनलाइन होता है, इंडियन बिलीव करते हैं कि मैं पहले पैसा दे दूँ पूरा ले लूँ, वहाँ शिप पे या किसी भी प्रोडक्ट पे जाऊँगा अपनी जेब से मैं बाद में कुछ पैसा नहीं दूँ, ओवर द काउंटर में सारी चीज़ें डिसाइड कर दूँ। तो हमारे यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस हैं, जिसमें खाना पीना अल्कोहल सब इंक्लूड रहता है, वो चॉइस होती है। तो आप जब परचेज करके आप जाते हैं वहाँ पे शिप पे, इट इज ऑल इंक्लूसिव, आपको और कुछ खर्चा करना है नहीं करना है, दैट इज योर चॉइस। ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट आप करना चाहें तो करें। तो उस केस में अगर हम डिराइव करते हैं, अगर वो आगे 100 रुपये से स्टार्ट करते हैं, हम भी 100 से स्टार्ट करते हैं, प्राइसिंग हमारी सेम रहती है। तो हम GST लगाते हैं, वो टैक्स पे उसका कमीशन पे करता है, उनका फूड का कॉस्ट ज़्यादा है, हमारा फूड का कॉस्ट कम है, हमारा ऑल इंक्लूसिव पैकेज है, उनकी ऑनलाइन की ऑन शो जो शिप पे जो रेवेन्यू होती है, तो कलेक्टिवली मिला के जो रेवेन्यू उनकी आती है और जो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी आती है, उसी तरीके से हमारी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी सेम रहती है। So globally, there's right now 500 cruise ships, and they're building every year 20, 30 ships more, much bigger, 7,000 guests, 8,000 guests. The ships are very big. And the ports in India, especially for cruise, they can only accommodate ships which are a little bit smaller like ours. It's not small, but it has to do with the size and the weight of the ship. Indian ports are built up to 100,000 tons. My ships, they have 40, 50 and 80,000 tons. Royal Caribbean and all the other ships have 150, 200,000 tons. So it's very difficult also for them to come here because the ports. 3 major companies, or 4, managing almost 75% of the total cruise market. Royal Caribbean, you know Royal Caribbean? It's the largest cruise company, stock market, 800 lakh crores. All the cruise companies make very lots of money, very successful. I worked there for 31 years, that's why they're so rich. Carnival, Norwegian Cruise Line. Why is our business unique? Because we have movable assets. We can shift. So we operate 365 days a year. We never stop. In 5 years, we have to stop 2 times for maintenance and dry docking. It's mandatory, it's regulated. टोटल जो मैंने बताया था कि विश्व में जो 500 साढ़े 500 शिप्स हैं, और वो कंपनीज अभी आगे 3 कंपनीज आगे 4 कंपनीज वर्ल्ड में जो है मेजर, वो 80% शिप का मार्केट कैप्चर करती है, और वो हर साल बड़े बड़े शिप्स भी आए हैं। उनके शिप्स काफ़ी बड़े साइज में 1 लाख मेट्रिक टन से 1.5 लाख मेट्रिक टन के शिप्स हैं, तो वो इंडियन बॉर्डर्स में नहीं आ सकते हैं। हमारे जो शिप हैं वो करीब 48,000 मेट्रिक टन से 1 लाख के आसपास के हैं, तो वो इंडिया के एकदम सूटेबल कंडीशन, इंडिया के पोर्ट की कंडीशन, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन के हिसाब से वही शिप, और बड़े शिप को हम लेके आएंगे तो उनके हिसाब से इंडिया में पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आगे वाले 15-20 साल में भी शायद डिफिकल्ट है। उसके अलावा जो उनका जो बिजनेस मॉडल है, जो शिप जिसको नंबर्स एंड ऑल यू वांट टू स्पीक, तो उनकी
उनकी जो शिप है वो इंडिया में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जो शिप बना रहे हैं वो शिप हमारे पास में राइट अपॉर्चुनिटी, हम ये कंपनी उन वेसल्स को खरीद सकते हैं। अभी आप नंबर्स की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीन देखेंगे हमारी, तो मैं आपको डायरेक्टली रेफर करूंगा, आप 24, 25 और 26 के जो नंबर है उसमें एक लाइन आइटम है प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस। तो अगर टर्नओवर की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24 में 444 करोड़ का टर्नओवर था, जो 26 में आपके 580 करोड़ का हुआ है। और एक्सेप्शनल आइटम में टैक्स की ड्यूटी क्या है, ताकि हमारा इंडिया अकाउंटिंग होता है, उसमें एसेट्स होती है, अभी नहीं है, ओल्ड होगी, आगे बहुत समझते लीज पे भी है। तो हम लोग अगर रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हिसाब से, तो हमारा 108 करोड़ का जो 2024 में लॉस था, वो आज की डेट में 70 करोड़ का 2026 में प्रॉफिट है। अब 25 और 26 को अगर हम कंपेयर करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपेयर करना चाहते हैं, तो मेरा टर्नओवर 597 करोड़ का 25 में था, जो कि 586 करोड़ 26 में है। 10 करोड़ का डिक्रीज हुआ है ओवर पीरियड, बट लार्जली आप देखेंगे लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, उसके अलावा लास्ट ईयर में आपका ये इंडिगो का क्राइसिस था, और उसके बाद में जो अभी आज की डेट में जो सिचुएशन चल रही थी बात, उसके बाद भी ये सब चैलेंजेस होने के बाद भी हम परफॉर्म आपको सेम, हमारे टर्नओवर नंबर्स आपको सेम रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में जो लार्जली जो आपको डिक्रीज दिख रही है 114 के सामने 78 करोड़ की, उसमें हमने करीब 40 करोड़ के खर्चे हमने एडिशनल लास्ट ईयर इनकर किए हैं इन टर्म्स ऑफ जो प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन का। हमने मैन पावर एक्सपांड की है बिकॉज तो वो वैसे आए तो उनका बुकिंग के लिए हमने ऑफिस स्पेस एक्सपांड करी है, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अगर 200-250 लोग लेकर आएंगे और उस हिसाब से। तीसरा एक पोर्ट चार्जेस का एलिमेंट होता है, जो कि पोर्ट चार्ज करता है। मुंबई पोर्ट में एक नया टर्मिनल बना है जिसमें मुंबई पोर्ट भी चार्ज कर रहा है और कंसेशन भी चार्ज कर रहा है, वो 10 करोड़ रुपये हम चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप कंपेरिजन करेंगे 40 करोड़ का अगर खर्चा अगर हम 2 साल को कंपेयर करते हैं 25 और 26 को आपस में, तो 40 अगर ऐड करते हो तो इस साल में हम लोगों का 78 प्लस 40 करते हैं तो करीब करीब हमारा 120 का 10 करोड़ से टर्नओवर कम होने के बाद भी हमारा परफॉर्मेंस अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो 143 में 120 का प्रॉफिट आता है। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके लिए काफी क्रिटिकल है। दूसरा वेसल के बारे में आपको हमने बताया कि हमने 2 वेसल्स दिए हैं। अभी हम लोगों ने स्काई और सन 2 वेसल हमने एक्वायर किए हैं। 16 मिलियन पर ईयर हम उनका लीज रेंटल पे करने वाले हैं, 10 साल तक पे करेंगे और 10वें साल में वो वेसल हमारा $1 देने पर हमारा हो जाएगा। तो ये वेसल का हो गया। तीसरा आपके पास शायद दिमाग में प्रश्न आएगा कि वेसल हमने अगर पुराने लिए हैं तो उनका मेंटेनेंस का क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या एज नहीं है। तो जो वेसल होते हैं इनका बाहर का जो शेल होता है वो एज इट इज रहता है, अंदर से आप इस तरीके से जैसे आप घर को अपनी होटल को रिनोवेट करते हो तो अंदर से वही तरीके से नया होता है। जो प्रावधान ये है कि एवरी 2.5 ईयर हर 2.5 साल में आपको वेसल को ड्राई डॉक में करना होता है। ड्राई डॉक इस नाम से समझ में आता है, शिप को समुद्र से बाहर निकाला जाता है, उसका पूरा इंस्पेक्शन होता है, चेक होता है, वो मैंडेटरी है। शिप का करीब करीब 800 ऑडिट हर साल होता है, वो अगर आपकी कंप्लायंस नहीं है तो शिप को आप सेल नहीं कर सकते हो। सारे प्रावधान, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो विदेश में या वर्ल्ड में जो शिपिंग के हैं वो हमारे पर भी एप्लीकेबल है। सैलरी भी जो विदेश में मिलती है वही हमको देनी है, सब कुछ विदेश वाला है। इट इज कंप्लीटली इंटरनेशनल एक्सेप्ट इट इज इंडियन कंपनी, इट इज ऑपरेटिंग, भारतीय कंपनी चला रही है, भारतीयों के लिए है और भारतीयों के तरीके से भारतीयों को एक्सपीरियंस दे रही है। तो ये कहना कि शिप की कोई कंसेप्ट नहीं है इसका। आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हमारा काम रहता है। हम ऑनलाइन हम जो रियल टाइम जो शिप चलाते हैं, 4 इंजन रहते हैं तो रियल टाइम उसको मेंटेनेंस करते हैं। एवरी 2.5 ईयर हर 2.5 साल में जब हम शिप को ड्राई डॉकिंग के लिए हम दुबई लेके जाते हैं, वो हमारे लिए चिपर पड़ता है। 7 दिन के लिए जाते हैं, पैसेंजर्स के साथ जाते हैं, पैसेंजर्स के साथ आते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट की शिप का सीजन ऑफ सीजन कुछ होता है, नहीं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सीजन और ऑफ सीजन। 365 दिन जहाज चलता है। मुंबई में जैसे ही आपका बारिश आती है उस वक्त जैसे अभी हमारा डिस्कशन हो रहा है कि शिप पे क्यों नहीं किया, हम भी चाहते थे शिप पे करें ताकि एक्सपीरियंस होता, बट 15 तारीख को शिप चेन्नई शिफ्ट हो गया है। अभी चेन्नई से ऑपरेट करेगा, चेन्नई आई से चेन्नई रहेगा, चेन्नई श्रीलंका जाएगा। तो इस ये वहाँ चले जाएगा, 3 महीने वहाँ रहेगा, जैसे गणपति हो वापस बॉम्बे आ जाएगा। बारिश खत्म होती है, गणपति जब आ जाते हैं उसके बाद में हमारा शिप ये बॉम्बे से सेलिंग करेगा। और हमारा जो हर नया शिप है वो हर साल बारिश के बाद आ रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कारों के हिसाब से रहता है कि दिवाली के बाद का समय उचित माना जाता है। तो हर नया शिप उस समय में आएगा अक्टूबर में। इस साल हमारा स्काई आने वाला है, अगले साल हमारा सन आएगा।
जब स्काई आएगा तो स्काई मुंबई के आइडेंटिटी पे आ जाएगा, एम्प्रेस कोचिंग चला जाएगा। जब सन आएगा तो स्काई एम्प्रेस की जगह पे कोचिंग चला जाएगा, एम्प्रेस चेन्नई चला जाएगा, और सन जो है वो बॉम्बे से ऑपरेट करेगा। तो नया शिप हमेशा बॉम्बे से इसी पार्ट से ऑपरेट करेगा। नंबर्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप आनंद देते हैं। मैं बता देता हूँ आपको वापस, फाइनेंस का डेटा पुअर नहीं है, इसीलिए मैंने बताया सर, वही मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। आप देखिए सर, आप सामने स्क्रीन पे देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में मेरा नंबर 597 करोड़ है। फाइनेंशियल ईयर 26 में मेरा टर्नओवर 587 करोड़ है। 10 करोड़ से मेरा टर्नओवर कम हुआ है। जबकि वो साल में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, इंडिया इंडिगो का होना हुआ था, अभी बार की सिचुएशन है, मतलब देयर वर सफिशिएंट फैक्टर थे जो कि टर्नओवर गिरा सकते थे, नहीं गिरा। इंडिगो के केस में हमारा टर्नओवर नहीं गिरा, पैसा जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया था उनको हमने बोला कि ठीक है आप नहीं सेल कर पा रहे हैं, आपकी सेलिंग बात नहीं होगी। कहने का मतलब ये है पैसा मेरे पास आ गया, उसका रिकग्निशन रेवेन्यू नहीं हुआ, वो शिफ्ट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हम प्रॉफिट की बात करते हैं, बिकॉज सी मैं क्या होगा सर, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स पे जाऊंगा, इंडेक्स के एडजस्टमेंट मेरे को पूरे मेरे कॉन्ट्रैक्ट आपको समझाने पड़ेंगे। आपके लिए अल्टीमेटली ये होता है कि इंडेक्स का इफेक्ट जब आप इस पे आते हो, प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स पे जब आते हो तो वो नलिफाई हो जाता है सारा चीज, क्या आप लीजिंग दिखाते हो या इंडेक्स के एडजस्टमेंट करते हो। उस बेसिस पे अगर हम जाते हैं तो मेरा 114 करोड़ का टर्नओवर प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2025 में। आज की डेट में मेरा प्रॉफिट जो 26 का है वो 78 करोड़ है। 78 करोड़ के प्रॉफिट पे मैंने 40 करोड़ लास्ट ईयर एडिशनल एक्सपेंस किया है इन टर्म्स ऑफ माय एक्सपेंशन प्लान, और मैं असेटिंग स्ट्रक्चर हूं। मैं वो खर्चा कैसे है, मेरी मैन पावर कॉस्ट पड़ी, बिकॉज मैं 2 वेसल और लेके आ रहा हूं अपने 2025 से मैं बुकिंग कर रहा हूं वेसल्स की। तो 2025 से बुक कर रहा हूं तो मेरी मैन पावर तो मेरा 70 से 70% तक का टर्नओवर मेरा इन हाउस है, इंटरनल मेरा कॉल सेंटर है। दूसरा सीएचआर हमने नया हायर किया, हमारे जो इंक्रीमेंट्स हुए मैंने ये बोला कि हमारी सैलरीज है पारे ग्रोथ। दूसरा जो मैन पावर की तो हमने ऑफिस स्पेस बनाया, दिल्ली में भी बड़ा है, बॉम्बे में भी बड़ा है। ये एक्सपेंस ऐसा है कि ये वन टाइम है, अब आगे जब 2 वेसल आएंगे तो एलोकेट हो जाएगा 40 करोड़। आज की डेट में 40 करोड़ पूरा वाटरवेज की बैलेंस शीट में सिंगल वेसल के ऊपर लोडिंग करा है। अगर हम कंपेयर करते हैं 25 को और 26 को, अगर ये इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं होते तो मेरा 10 करोड़ टर्नओवर कम होने के बाद भी मेरा प्रॉफिट लास्ट ईयर से 10 करोड़ ज्यादा है। लास्ट ईयर मेरी फ्यूल में सेविंग है तो वो उससे कॉम्पनसेट हो रहा है। तो आपको मतलब आई थिंक ये नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो सिटी का हाँ जी, डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है, हाँ जी, तो ये नॉट कीप दैट इन हाई प्राइस। हाँ आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है सर। अब इसको मैं आंसर ऐसे करूँगा कि हम लोगों ने जब ये इशू रेज किया है, आज हमारा 585 करोड़ का जो इशू है, इसका हमारा वैल्यूएशन जो था हम लोग आज की डेट में प्री मनी 5250 है, पोस्ट मनी 5850 है। जब हम लोगों ने चालू किया था तो वैल्यूएशन जो हमको स्टार्ट में दिया गया था वो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर था, तो हमारी सोच थी। लेकिन हमारा आप आईपीओ देखेंगे, इसमें प्रमोटर कोई पैसा नहीं निकाल रहा है, इट इज अ फ्रेश इशू, पूरा मनी कंपनी में जा रहा है। आज तक हमने जो भी प्रॉफिट बनाया हमने कंपनी में डाला, पहला वैसे एम्प्रेस हमने इंटरनल अप्रूवल से लिया, प्रॉफिट से लिया है। आज की डेट में मैंने जो 2 वेसल जब मैंने डीआरएच पे फाइल किया था उससे जस्ट पहले अप्रैल में मैंने एग्रीमेंट साइन किया था 2 वेसल के लिए मुझे $32 मिलियन करीब 100 के प्रॉफिट 320 करोड़ रुपया मुझे एडवांस देना था। मेरी सोच ये थी कि मैं आईपीओ लाऊंगा और आईपीओ की प्रोसीड्स से पैसा यूज करके दूंगा, लेकिन आईपीओ जब डिले हो गया तो जब आज हम बात कर रहे हैं, जब मैंने डीआरएच फाइल करी थी, आज हम बात कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी 220 करोड़ रुपया दे चुका हूँ 2 वेसल के लिए। मेरी बुक में आप देखिए कोई लोन नहीं दिख रहा है, कहाँ से दिया? बिकॉज मैंने प्रॉफिट बनाया। लास्ट ईयर मैंने करीब आप सामने देख रहे हैं कि 113 करोड़ बनाया। अच्छा ये प्रॉफिट 113 करोड़ आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन आप ऑपरेशनल कैश फ्लो बनाएंगे तो ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में कस्टमर एडवांसेस देते हैं 100-150 करोड़ की, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मेरा मॉडल है, तो मुझे पैसे का कैश फ्लो का कभी चैलेंज नहीं आता है। अगर आप मेरे पिछले साल का कैश फ्लो देखेंगे 26 का, तो आपको दिखेगा उसमें कि मेरा आउटफ्लो है करीब 150 करोड़ का फर्ज। सेकंड जो वैसे उसका भी मैंने पेमेंट कर दिया है, तो जो मेरा पहले डीआरएचपी फाइल हुआ था 727 करोड़ का, बीच में मैंने जो फाइल किया था वो नंबर नहीं बोलूँगा मैं आपको, हमारा मूड था, हमारा मन था कि हम काफ़ी बड़े पे जाएंगे, पर हमने जब पैसा पे कर दिया तो हमने वो चीज़ आईपीओ साइज में रिड्यूस कर दी।
हमारा क्या था कि 585 में से 480 करोड़ वेसल के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए डाल रहे हैं। उसमें मेरा एक वेसल जिसका भी जो थर्ड वाला वेसल उसका 10 मिलियन करीब 100 करोड़ मेरे को उसका एडवांस देने बाकी है, वो भी अक्टूबर में और अगले साल। और जो बैलेंस रहेगा वो वेसल का लीज रहता है। हमारा स्ट्रक्चर आप समझिए $16 मिलियन 160 करोड़, मैं 100 का कन्वर्जन नहीं पकड़ रहा हूँ, 160 करोड़ हर साल एक वेसल के लिए मैं 10 साल पे करूँगा और 10वें साल $1 दूंगा, वेसल मेरा बनता है। यही अगर मैं आउटराइट परचेज करता तो मुझे 160 या जो भी ज्यादा देना होता, लीजिंग में मेरा परसेंट वैल्यू उसका कम है। गुजरात की सिटी में मैंने कंपनी फॉर्म करी नई सब्सिडरी, उसकी वजह से मैं अथॉरिटी टैक्स में भी बेनिफिट ले रहा हूँ। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि 2 वेसल का जो मैं लीज रेंटल पे करता हूँ, जो मेरा 48 मिलियन होना चाहिए था 32 मिलियन होगा, बिकॉज 16 मिलियन का विथहोल्डिंग टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है। तो वी आर वेल स्ट्रक्चर्ड। और आपको ये मैं बोलते हुए मुझे मतलब काफ़ी प्राइड फील हो रहा है कि हमने हमारे इंटरनल बिना किसी लोन के पहले वेसल को हमने खरीदा इस बिजनेस में, जो हमने बोर्ड में चालू किया था। आज दूसरे वेसल और दूसरे वेसल का 16 मिलियन पूरा पे कर दिया और तीसरे वेसल का भी 8-6 मिलियन ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, बाकी सब सर मैं भी थोड़ा ऐड करूँ कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंस आया है लॉन्च करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पूरा चेक किया है, दे हैव डन देयर डिलिजेंस, उन्होंने दे हैव गिवन देयर डिमांड। तो व्हाट दे हैव सीन इज द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। उसमें 2 वेसल्स ऑल आ रहे हैं, द डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सर ने एक्सप्लेन किया है कि हाउ वी आर सॉर्ट ऑफ अंडर पेनिट्रेटेड सो टू स्पीक फॉर दिस क्रूजेस। तो growth in the revenue and profit numbers will be strong. So on that basis हमने हमारा ये confidence आया है और सर ने बोला है कि हमने actually issue size कम किया है, तो that has made it more attractive. और इसकी वजह से ये पास के नंबर जो हैं सो हैं, and that is also well explained by sir. तो future is very strong and on that basis it is very attractive. That's what institutional investors have seen also. और आप देखेंगे मंडी को 10%। सर वो तो सेबी का रेगुलेशन है सर, वो वी कैन डू एनीथिंग देयर। तो बट लिस्टिंग के बाद भी आप ले सकते हैं, तो रिटेल एंड एचएनआई आल्सो देयर 15%। तो एनी प्लान टू गिव इंसेंटिव या गिव शेयरहोल्डर डिस्काउंट स्कीम? सॉरी सर, क्वेश्चन क्या था वो बताइए सर। अगर ये सेबी अलाउ करता हो तो हमारे I can answer this for you. We have special shareholder discount for cruising. So I'm going to give you my Gujarati calculation. First we increase the price by 50% and then we give 25% shareholder discount. So I am happy and also the shareholders are happy. ये सर अपना जो क्रूज टिकट प्राइस की बात करेंगे नहीं सर, आप मतलब आपका अगर मेरा ऐसा मानना है, मैंने सिर्फ एक ही बार क्रूज किया और उसको मैंने डिसाइड किया था उस कंपनी का सीईओ को ऐश्वर्य के आशीर्वाद से वो सच भी हुआ है। ये लोग जितना भी मेरी बिजनेस टीम ने आज तक जो भी प्रोजेक्शन दिए हैं उससे इन्होंने परफॉर्म बेटर किया है। आप क्योंकि क्या है ना सर, ये नंबर्स मेरे इंडेक्स और वजह से लीजिंग की वजह से इम्पैक्ट है, इसलिए मैंने आपको नीचे का नंबर दिया है। मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करूँगा, आप नंबर को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप शांति से समझेंगे तो पिछले साल के चैलेंजेस के बाद भी सिंगल वेसल पे एक तो हमने कंसिस्टेंटली सेम नंबर दिया है, 10-8 करोड़ का तो फर्क नहीं होता है। 600 करोड़ की बात करते हैं तो प्रॉफिट में 50 करोड़ 40 करोड़ खर्चा एक्स्ट्रा करने के बाद भी आप अच्छे नंबर पे हो। तो आई थिंक वी आर अ गुड एज अ बिजनेस और कैश फ्लो वाइज सर एज अ सीएफओ मुझे कभी टेंशन रहा ही नहीं, मेरे सारे डेटर्स एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज अलाइन्ड, कोई चैलेंज नहीं। I think it's very important for you to understand the big picture on the cruising is while I started cruising almost everywhere in the world, South America, Europe, Singapore, China, Middle East. Before COVID, China was the 3rd largest cruise market. And when I started speaking with the Prime Minister, the Shipping Minister, I started all of this when Nitin Gadkari was the Shipping Minister. And within the Cruise Bharat mission, and this is the important thing, so it's not part of my DRHP, but you got to understand your vision as India. 2047, 50
15 million passengers. That will make India the third largest river cruise and cruise market in the world. That's part of the Cruise Bharat mission and it's part of the Vision 2047 of the Prime Minister. सर टोटल रेवेन्यू में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या है? ये सर कंसेप्ट अभी है ना, आपको ये बताऊँ कि हम इंडियन कंपनी है और इंडियंस को लेके जाते हैं। तो आप मेरी बुक्स में अगर बात करेंगे, अगर नंबर की बात करते हैं तो बारिश के सीजन में हम जब चेन्नई साइड से रहते हैं तो वीक में एक वीक जो मंडे से फ्राइडे जो मेरी सेलिंग होती है, सप्ताह की 4 सेलिंग, तो आप समझिए कि साल का 52 वीक की बात करते हैं तो उसमें हम लोग करीब 12 सप्ताह इंटरनेशनल सेलिंग होती है। लेकिन वो बुक्स में डोमेस्टिक ही आती है, बिकॉज मैं इंडियन कंपनी हूँ, इंडियन पैसेंजर को लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को GST लगाना ही लगाना है। और हम लोग सर कंप्लाइंट, मतलब वी डोंट बिलीव इन, हम चाहते हैं धंधा हो, टैक्स भरने में हमको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत क्लियर है। और हमारा जो अभी आप देखेंगे ना, वेसल से देखेंगे तो आज जो मेरा वेसल है, आप देख रहे हैं एम्प्रेस में, तो एम्प्रेस में मेरे पास में अराउंड 69 सीटें बल्कनी है और ये सर्वविदित है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडियंस जो होते हैं ना उनको चाहिए, क्योंकि हमारा कैसे बाहर नहीं जाएंगे, हमको सनबेदिंग नहीं करना है, धूप नहीं खानी है, वो हमारा गो गार्डिंग नहीं करेंगे, हमारा सब करके हमारा रूम बड़ा होना चाहिए। हमारा कैसा है, बड़ा है कि नहीं, हमारे मार्केट है कि नहीं है। तो मेरे एग्जिस्टिंग वेसल में 69 है, नए वाले मेरे 250 है, तीसरे वाले में 450 है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेम प्राइस जो आज भी मेरी वेबसाइट पे चल रही है, तो नए वेसल्स में भी मैं वो सेम प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। अब सर के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। मेरा अगर आप देखेंगे, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, आप देखिए, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत। आप ये वाला स्लाइड देखेंगे, इसमें रेवेन्यू पर पैसेंजर देखिए आप बीच में। हम लोग 10,523 रुपया पर पर्सन पर डे चार्ज करते थे 2024 में, पर डे पर पर्सन। सर आज एक 5 स्टार होटल, इसमें 10,500 जो बढ़कर अभी 12,036 हमने चार्ज किया फाइनेंशियल ईयर 26 में पर पर्सन पर डे। उसमें हम बंदे को 4-5 टाइम जितना खाना होता है, फॉरेन में क्रूज पे जाते हैं तो आप गए होंगे, देखेंगे वहाँ को टाइमिंग रहता है 10 बजे से 12 बजे हुआ, उसके बाद जय माता दी। हमारे यहाँ पैसा नहीं है सर, आप जितनी बार खाना 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 खाइए, जितनी बार आपको आपके जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो लेने लीजिए, और उसके अलावा हमारे शोज सारे इंक्लूडिंग है। तो वो कंसेप्ट आप सर एक 5 स्टार में आज की डेट में जाके एक बार नाश्ता करते हैं 5,000 रुपये साथ हो जाते हैं, खाना तो भूल जाइए आप और कमरा तो भूल ही जाइए। यहाँ पर आपको 12,000 रुपये में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विस्क का बल्ले शो में आपको स्टैम्प पेपर लिख के दे सकता हूँ। अमेजिंग शो है, जितनी बार शिप पे जाता हूँ मैं देखता हूँ। बॉलीवुड नाइट्स 20 मिनट का म्यूजिकल होता है, ऐसा लगता है वो टीवी आपके सामने ही लाइव परफॉर्मेंस। इट्स अमेजिंग। 100 आर्टिस्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल शो है हमारे यहाँ। मैजिक शो तेजस जो कि एक मतलब लिम्का वर्ल्ड का रिकॉर्ड वर्ल्ड है, उसका शो होता है। बच्चों की गेम्स है, रॉक क्लाइंबिंग है, स्पा है, फोटोशूट है, शॉपिंग मार्केट है, हॉस्पिटल है, मतलब इट इज एवरीथिंग इज देयर ऑन द शिप। और आपको जेट फूड चाहिए, वेज फूड चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। I think I need to tell you something. You've been in Singapore, right, on the cruise. What room did you have? You have a room with balcony? No? Okay, but now I'm telling you a secret. Indians, especially Gujaratis, Marathis, they travel a lot on cruise ships international since the last 30 years. Though you like to bargain for a good deal, Indians pay the most expensive cruise ticket price in the world because they buy the best rooms. So there's a secret deal. So when you see our new ships with having all these good rooms with all the suites and balconies, this is really where the business is. So don't think because you like to bargain. Indians spend a lot of money internationally and domestically. They buy the most expensive rooms. So don't be blindfolded about this, oh, we want to be cheap. It's not cheap. It is a good deal, but always buy the best. And that's naturally. In Gujarat, people have quality. Marathis, they buy good things. A lot of our guests are from Gujarat. I would say 30-40% of our guests are from Gujarat or from Rajasthan. So
Indians are very happy to spend good amount of money for good quality. But good quality is also very important to understand how Indians like to spend. You remember when you went to Singapore? You buy ticket price. You want to have one drink, you have to pay. You want to go in a special restaurant, you have to pay. You want something extra, you have to pay. No good. In India, people like to bundle everything. Let's pay before everything, and then we enjoy, have a good time. That's what we are doing. We are doing it in that you can come on the ship. First of all, you remember again in Singapore, dinner 8 o'clock, breakfast 9 o'clock. Our ship, you eat 24 hours whenever you like, because in India, you eat when you're hungry, and you eat and dance a little bit, you sing, then you eat again, then you have a drink, then you go for entertainment. So that's the difference. The whole easiness of cruising the Indian way is very, very important for you, for your family, for your culture, and this differentiates for us. Now here's the big secret. Because I already create the price all included, you can eat as much as you like, drink as much as you like, etc. We actually make more money than the others. Much more. So we make no less than the others do. Sir, how do you ensure the safety of your passengers? I am asking this particularly because of the ongoing war. And another question, because आपने बोला कि it's not about the performance, it was because mainly of Operation Sindoor and Indigo crisis. So God forbid, because क्योंकि last month Indian Army का message आया था कि we are prepared for Operation Sindoor 2.2. God forbid अगर वापस Operation Sindoor 2.0 होता है तो आपकी कंपनी कितनी prepared है? Safety in what sense? Safety. Basically two questions. So your question one is with regards to Passenger safety. safety. I answer that. So we are very regulated. So for your understanding, a cruise business is 30 times more regulated than an airline. Safety, first we have a jail on the ship. We have our own safety special forces. All my safety and security officers on the ship, they are trained by special forces. Some of them are Gurkhas, some of them are from Israel, some of them Special Forces India. So we have more than 900 CCTV cameras, but the whole layout of the ship and everything the way it's planned, it's all based for high safety. We have more than 800 audits a year. So it's all regulated. We are no different than any ship in the world. You come on my bar, you order a drink, you swipe your card, I already know your age, I already see your picture, and if you're not supposed to drink, you will not get a drink. That's how we manage safety, right? If anybody is rude, we put you in the jail, and the next port you go. So it's like everywhere, you have to behave, no? So it's very safe. And now we go to the question of I think his question was, I think his question was that the airplane situation. First, his question is First was you were asking us the safety on the ship, right? safety on the ship was related to the first is the war which is happening. Second, the operation was through. Yeah. Then also you have to understand shoreside operation. So we are daily connected with shipping minister, we get all the information. You remember last year, the moment one submarine from Karachi left, we already know. We get all these information, okay? So we are connected through the ship shore, and that's all guided in India by the Director of General Shipping, and together with the merchant navy, so we work with the Navy, we work with Coast Guard, we work with all of them. This information is shared. It's no different with the airline. Remember when the planes, there's a war, they are informed you have to go a different direction. Same. So that's it. So आपका क्वेश्चन जो है बहुत सरल से हिंदी में आंसर करता हूँ कि एक तो शिप पे सेफ्टी का ऐसा पैसेंजर वाइज कोई चैलेंज नहीं है।
इंडिया जो है ऐसी जगह पर है, हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर वेदर नहीं होती, बड़ी वेव आना करना, वो भी इशू नहीं है, जिधर क्या हो रहा है थ्रू आउट ईयर कोई इशू नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान वाला जो हुआ था, पहुँचे हम तो उसको चलने नहीं थे, और उसमें भी कोई चैनल होती है, जैसे मैंने बताया कि पहले से इन्फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि ये शिपिंग से कौन होते हो बॉम्बे खुद एक निवल बॉम्बे वहाँ पे चैम्बर से फोन भी नहीं चलते, तो कंट्रोल रहता है। अभी जो वॉर होता है उसका अपने को कोई इम्पैक्ट नहीं है, जैसे अभी वॉर में जो है सब शिपिंग कंपनीज का है, हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम क्लोज चार्ज होते हैं, हम लोग नो वार जो भी रहने वाले हैं, तो वो हमारे लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। और जो वार वाला एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होता है, तो वी वर पार्ट ऑफ इट, ऑपरेशन सिंदूर 1 आल्सो। हम उस वक्त सेलिंग कर रहे थे, हमारे पास कोई चैलेंजेस नहीं थे। पब्लिक को अगर ट्रैवल करने में कुछ चैलेंज था, किसी को जैसे कि नॉर्थ ईस्ट साइड से उधर कोई आ रहे हैं, किसी का ये था कि वो रीशेड्यूल कर रहे हैं, स्पोर्ट रिफंड नहीं था, बाकी सेलिंग कर लीजिएगा। अगर मेरा 30 से 45 दिन के अंदर अगर कोई सेलिंग कैंसिल होता है तो वापस माल बेच जाता है। मुझे वो चैलेंज नहीं आता है कि मेरा रेवेन्यू को फॉलो होता है, क्योंकि 30 दिन पहले होगा तो वापस बेच दूंगा, उनको रीशेड्यूल कर दूंगा, रिफंड नहीं करूँगा, तो वो चैलेंज नहीं है। आई थिंक मेरा आंसर कर दिया क्वेश्चन। Any other questions? Thank you very much for Thank coming. you. Have a beautiful day. Jai Mata Di. जय माता Thank you. Please join us for lunch. Management is available. Informal interaction जो भी आपको करना है, lunch and Yeah.